تم نے بہت عمدگی سے حلیہ بدلا ہے، لیکن اپنے قد و قامت سے تم ہزاروں سے الگ نظر آتے ہو۔ مجھے اس خطرے کا احساس ہے، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ تم کر دو۔ ہاں میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شرفو نے نہایت پرجوش لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ نہایت رازداری سے پتہ لگانے کی کوشش کرے کہ شاہ مراد کی ٹرک کمپنی کے ٹرکوں کا بیڑا اس وقت کہاں ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ شاہ مراد کو ہٹانے کے بعد کہاں ٹھہرتا ہے۔ شرفو نے وعدہ کیا کہ وہ کل صبح ہی سے اپنی مہم کی ابتدا کر دے گا۔ اگلے روز صبح سویرے شرفو اور میں ایک ساتھ گھر سے نکلے۔ شرفو نے ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے گڑھ کر رخ کیا، جبکہ میں نے حتی الامکان تیز رفتاری سے چلتا ہوا چمن ہاؤسنگ اسکیم میں نعمت شیخ کے بنگلے کے پاس جا پہنچا۔ حسب توقع سورج خاصا اونچا ہو جانے کے باوجود اس عالیشان بنگلے پر نیند کا غلبہ طاری تھا۔ میں خاصا فاصلہ رکھ کر بنگلے کی نگرانی کرنے لگا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، لیکن ایک عدد نوکر نما شخص کے علاوہ کوئی گیٹ سے باہر نہیں نکلا۔ وہ نوکر بھی سودا سلف لے کر واپس بنگلے میں غائب ہو گیا۔ اکتاہٹ اور بھوک جب برداشت سے باہر ہونے لگی تو میں فرلانگ بھر دور ایک چارپائی ہوٹل میں جا گھسا۔ کھانا کھانے کے بعد میں پوزیشن بدل کر ایک بار پھر بنگلے کی نگرانی کرنے لگا۔ سفیر کے بعد وہی خستہ حال نوکر مجھے ایک بار پھر بنگلے کے گیٹ سے باہر نکلتا نظر آیا۔ اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ میرے پاس سے گزر کر وہ کچھ فاصلے پر واقع ایک میڈیکل اسٹور میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بار پھر میرے پاس سے گزرا۔ میں چند قدموں کا فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ بنگلے کے گیٹ پر پہنچا اور چوکیدار کو آواز دے کر گیٹ کھولنے کو کہا۔ گیٹ کی کھڑکی کھلنے پر میں مین گیٹ کے عین سامنے تھا۔ میں نے صرف ایک نظر گیٹ کے اندر ڈالی اور آگے نکلتا چلا گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ نعمت شیخ کی گاڑی بنگلے کی پارکنگ میں موجود تھی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ نعمت شیخ اس وقت بھی گھر کے اندر موجود تھے۔ اب میں زیادہ یکسو ہو کر اپنا کام جاری رکھ سکتا تھا۔ رات 8 بجے کے قریب میں نے بنگلے کا بڑا گیٹ کھلتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری طرح میں چوکنا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ سے نعمت شیخ کی گاڑی برآمد ہوئی۔ اندازے کے عین مطابق اس کا رخ اس طرف تھا جہاں میں درخت کی اوٹ میں موجود تھا۔ گاڑی کی رفتار تیز نہیں تھی اور میرے سامنے سڑک پر موجود اسپیڈ بریکر کے قریب پہنچ کر تو اس کی رفتار بہت ہی کم ہوگی۔ میں نے اپنا پستول تھاما اور پلک چھپکتے میں گاڑی کے پاس جا پہنچا اور پستول کی نال نعمت شیخ کی کوپری سے لگا دی۔ بریک لگاؤ، میں نے گھرا کر کہا۔ اگلے لمحے گاڑی ساکت ہو گئی۔ نعمت شیخ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش موجود تھی۔ میں نے لمحہ بھر میں اپنے آس پاس کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ پچھلا دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ کہ اس نے میرے حکم پر بھی نہایت سعادت مندی سے عمل کیا۔ میں دروازہ کھول کر رکبی نشستوں پر قابض ہو گیا۔ گاڑی آگے بڑھا اور رفتار نارمل رکھنا۔ کوئی بھی چالاکی دکھائی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی چمن ہاؤسنگ سوسائٹی کی کشادہ اور صاف ستھری سڑک پر ہموار رفتار سے رواں دواں تھی۔ اس دوران میں نعمت شیخ نے کئی مرتبہ عقب نما آئینہ میں بغور میرا جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا چہرہ فرنٹ سیٹ کی پشت کی آڑ میں کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ دیکھو بھائی، تم جو بھی ہو اور مجھ سے جو کچھ بھی چاہتے ہو، صرف اتنا جان لو کہ میں اس وقت ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ مجھے دمے کی تکلیف ہے اور اگر فوری طبی امداد نہ ملی تو میری حالت خراب ہو سکتی ہے۔ نعمت شیخ کا لہجے میں تکلیف کی جھلک موجود تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بات پر یقین کروں یا نہ کروں۔ تم مر بھی جاؤ تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ویسے بھی اگر تم نے میرے سوالات کے سچ سچ جوابات نہ دیے تو تمہارا انجام عبرتناک موت ہی ہوگا۔ سوالات؟ کیسے سوالات؟ نعمت شیخ نے چونک کر کہا۔ اس بار کوشش کے باوجود میں اپنا چہرہ اس سے نہیں چھپا سکا۔ وہ پہلی نظر میں مجھے نہیں پہچان سکا، البتہ میرا حلیہ دیکھ کر اس کے چہرے پر خاصے ناخوشگوار آثار ابھر آئے تھے۔ اس وقت میرے پرس میں 5,500 روپے ہیں۔ یہ چاہے تو یہ گاڑی بھی لے جاؤ اور مجھے یہیں اتار دو۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ مرنا ہے تو شوق سے مرو۔ مجھے ایسے شخص کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوگا جو محض پیسے کی خاطر اپنے وطن اور اپنے جگری دوست سے غداری کر سکتا ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر اسے اس قدر شدید جھٹکا لگا کہ اس کا پاؤں گاڑی کے بریک پر دبتا چلا گیا۔ گاڑی ساکت ہوتے ہی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ تم کون ہو اور مجھ پر غداری کا الزام؟ یک لفظ اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی حیرت اتر آئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ہاں، میں ذوالفقار علی شاہ ہوں، جسے تمہارے دوست سردار خضر خان نے تمہارے پاس بھیجا تاکہ میں تم سے مدد حاصل کر سکوں۔ ہاں، لیکن تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اور یہ پستول؟ اگر میں ان وقت پر تمہاری سازش سے آگاہ نہ ہو جاتا تو شاید وادی بولان کے چیل کوے میری ہڈیوں سے گوشت نوچ کر دعوت اڑا رہے ہوتے۔ تو تم کون سی سازش کی بات کر رہے ہو میرے بھائی؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ تم یقیناً کسی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ ہاں، واقعی میں غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ اس رات ٹرانسمیٹر پر تم میرا سودا کر رہے تھے۔
मैं तुम्हारी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज अपने कानों से सुन चुका हूं। कह दो कि उस वक्त मेरे कान बज रहे थे या मैं ख्वाब देख रहा था। तुमने अपनी तरफ से पक्का काम कर दिया था। अगर मेरा साला लेने ड्राइंग रूम की तरफ ना आता और तुम्हारी बातें मेरे कानों में ना पड़ती तो तुम वादे के मुताबिक मुझे मेरे दुश्मनों को सौंप चुके होते। और तो तुमने वो बातें सुन ली थी। देखो, मैं अब भी कहूंगा कि तुम गलत फहमी में मुब्तला हो। तुम पूरी बात सुनोगे तो ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त नहीं है कि मैं तुम्हारा बदख्वाह हूं या मैं खिजर खान से वादा खिलाफी करके तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के हवाले करने का इरादा रखता था। तुम मुझे लच्छेदार बातों में नहीं उलझा सकोगे, मैंने सख्त लहजे में कहा। अपनी खैरियत चाहते हो तो सच से बता दो कि मेरे दुश्मनों का अड्डा कहाँ है और क्या शाह मुराद क्वेटा में आ चुका है। देखो जवान, मैंने जो कुछ कहा वो 100% दुरुस्त है। मेरा कसूर यह है कि मैंने तुम्हें शुरू ही में पूरी सूरत हाल से आगाह नहीं किया, वरना बात इतनी न उलझती और मैं ऐसा करने पर इसलिए मजबूर हुआ कि मुझे उसकी हदायत की गई थी। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम फालतू मुकालमेबाजी करके अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो, मैंने झुंझलाते हुए कहा। मेरे सवालों का दुरुस्त जवाब देकर तुम बासानी अपनी जान छुड़ा सकते हो। मैं वादा करता हूं कि अगर तुमने इत्मीनान बख्श जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चुपचाप गाड़ी से उतर जाऊंगा। देखो, तुम जिन हालात का शिकार हो इनके पीछे नजर तुम्हारा अपने साय से भी महफूज और मोहतात होना बिल्कुल दुरुस्त है। मौजूदा सूरत हाल में अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो इतनी आसानी से तुम्हारी बात का एतबार नहीं करता। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। मुझे यकीन है इसके बाद बात खुलकर सामने आ जाएगी। अगर फिर भी तुम मुतमईन ना हुए तो तुम्हें अपनी मर्जी का सलूक करने की इजाजत होगी। ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने आसपास के माहौल का बगौर जायजा लेते हुए कहा, लेकिन तुम्हें चंद मिनट के अंदर अंदर बात मुकम्मल करना होगी। ठीक है, अब सुनो असल किस्सा क्या है। जैसा कि तुम्हें मालूम है, खिजर खान को तुम्हारी रवानगी के बाद मुल्तान जाना था तो उसने यही किया। वो मुल्तान में अपने ससुराल पहुंच गया और फिर मुनासिब मौका देकर कौमी सलामती के खुफिया इदारे के दफ्तर जा पहुंचा और तमाम रूदाद वहां के बाइख्तियार अफसरों की गोश गुजार कर दी। ये सुनकर वहां हंगामा उठ खड़ा हुआ। पूरी तौर पर इस्लामाबाद राब्ता किया गया। इस्लामाबाद से कहा गया कि यह मामला नहायत एहतियात से हैंडल किया जाए और सबसे पहले तुम्हें तलाश करके आला अफसरान के सामने पेश किया जाए ताकि तुम्हारी मदद से कोई ठोस कदम उठाने की मंसूबाबंदी की जा सके। खिजर खान ने तब इन लोगों को मेरे बारे में बताया और कहा कि इस बात का कभी इम्कान है कि तुम जल्द या बादेर मुझसे राब्ता करोगे। चुनाचे कौमी सलामती के इदारे के एक अहम अफसर ने मुझसे मुलाकात की और मुझे पूरी सूरत हाल से आगाह करके ताउन की दरख्वास्त की। मुझे एक ट्रांसमीटर दिया गया और हदायत की गई कि तुम यूं ही मेरे पास पहुंचो, मैं इस ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारी आमद की इत्तला दे दूं। मुझे इस बारे में तुम्हें कबल अज वक्त आगाह करने से मना किया गया था, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपाई थी। ओह, तो असल बात ये है। मैंने उसके बयान के एक एक लफ्ज को जांचने के बाद कहा, इसका मतलब है मुझे वाकई गलत फहमी हुई है। मैंने अपना पिस्तौल छुपा लिया था। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर यह बात तुम्हें पहले मालूम हो जाती तो शायद तुम्हें यकीन ना आता। चलो, इसी बहाने मुझे तुम्हारी कारकर्दगी देखने का मौका भी मिल गया। अपने चौकीदार की तो मैंने ठीक ठाक खिंचाई की थी। उम्मीद है वो कभी अपने फर्ज से गाफिल नहीं होगा। अब तो मेरे साथ घर चलो ताकि सिलसिला एक बार फिर वहीं से जोड़ा जा सके जहां से टूटा था। तुम्हारे फरार का सुनकर ट्रांसमीटर वाले साहब ने खासे तल्ख लहजे में मुझसे बात की थी। उम्मीद है तुम्हारी वापसी का सुनकर वो खुश हो जाएगा। मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, मुझे आपके साथ चलने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं फौरी तौर पर आपके साथ आपके घर नहीं जा सकूंगा। मुझे एक जगह पहुंचकर इस सूरत हाल के बारे में अपने एक साथी को एतमाद में लेना होगा। अगर मैं रात भर घर न पहुंचा तो वो परेशान हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर घर जाएं, मैं कल सुबह आपके घर पहुंच जाऊंगा। उस ट्रांसमीटर वाले साहब से भी कह दीजिएगा कि सुबह आपके वो घर पहुंचाए। अगर तुम्हारा जाना जरूरी है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम अपने साथी को पूरी बात समझा देना, इसके बाद हम इकट्ठे घर चलेंगे। नहीं, आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं। आप डॉक्टर के पास जाएं, मैं सुबह 9 बजे तक आपके घर पहुंच जाऊंगा। नेमत शायक ने मजीद इसरार नहीं किया और मुझे एक जगह छोड़कर आगे निकल गया। मैं खरामा शरफू के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। यह महज इत्तिफाक ही था कि मैं यूं ही उसके घर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ा, एंड उसी वक्त शरफू का ट्रक भी इसी तरफ मुड़ता नजर आया। मैंने शरफू को देख लिया था, लेकिन उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ सकी। वो भी यकीनन अपने घर ही जा रहा था, लेकिन मैं अपने खस्ता हुलिये के साथ उसे आवाज नहीं दे सकता था। वैसे भी वहां से शरफू का घर ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फरलांग के फासले पर था। मैं महज चंद मिनट में वहां पहुंच सकता था। मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक मेरी नजर एक पजीरो जीप पर पड़ी जो शरफू के ट्रक के अक्कब में खासी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। सड़क अच्छी खासी चौड़ी थी। पजीरो का ड्राइवर चाहता तो बआसानी ट्रक को ओवरटेक कर सकता था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। शरफू का ताकुब किया जा रहा था। ताकुब करने वाले कौन हो सकते थे? मेरे लिए यह अंदाजा लगाना भी दुश्वार नहीं था। शाह मुराद के पालतू कुत्ते शरफू के जरिए मुझे शिकार करना चाहते थे, लेकिन मेरे खुदा ने बर वक्त मुझे इस ताज़ीज़ से खबरदार कर दिया था। मेरे कदम खुदकार अंदाज में रुक चुके थे।
मैं वहीं से पलट सकता था, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा शरफू की फिक्र थी। मुझे काबू करने में नाकामी पर वो गुस्सा उस गरीब पर उतार सकते थे। मैं ये किसी तरह गवारा नहीं कर सकता था कि वो बेचारा महज मेरी मुआवनत के जुर्म में इन दरिंदों की बर्बरियत की भीड़ चढ़ जाए। मुझे हर कीमत पर उसे बचाना था, ख्वाह मुझे उसके लिए अपनी जिंदगी ताव पर लगाना पड़ जाती। शरफू का ट्रक घर के करीब पहुंच चुका था। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। ट्रक रुकने तक मैं खासा फासला तय कर चुका था। शरफू ट्रक से उतरा और टहलने के अंदाज में अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। ट्रक के रुकने पर पजीरो इसके पहलू से गुजरकर आगे बढ़ती चली गई, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत जल्द वापस लौट आएगी। अब मैं शरफू के घर के इतना करीब पहुंच चुका था कि वहां होने वाली तमाम कार्रवाई को बखूबी देख सकता था। अब मुझे किसी आड़ की तलाश थी जिसके पीछे खुद छुपा सकता, लेकिन वहां आसपास ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। वक्त बहुत कम था। मुझे पजीरो के वापस लौटने से पहले खुद को किसी महफूज जगह पोशीदा करना था। फिर मैं एक फैसले पर पहुंच गया और नहायत तेज रफ्तारी से शरफू के ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। मैं ट्रक के पहलू में पहुंचा और फिर फौलादी सीढ़ी के जरिए महज चंद लम्हों में ड्राइविंग कैबिन की छत पर पहुंच गया। इस दौरान मुझे अंधेरे की चादर मुयस्सर रही थी, लिहाजा देखे जाने का खतरा न होने के बराबर था। छत पर पहुंचने के बाद मैंने ट्रक की पेशानी पर सजे चौबीताज की जालियों से सामने की तरफ नजरें जमा दी। तवक्का के मुताबिक बमुश्किल 2 मिनट बाद मुझे वही पजीरो वापस आती दिखाई दी। इसकी रफ्तार बहुत कम थी। वो ट्रक के पास से गुजरकर आगे बढ़ती चली गई। ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 करांट शक्ल अफराद मौजूद थे। वो तीनों मेरे लिए अजनबी थे। इन तीनों की नजरें शरफू के घर के बंद दरवाजे पर जमी हुई थी। चंद मिनट के बाद वो लोग एक बार फिर पलटे और इस मरतबा पजीरो तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद सड़क के किनारे ठहर गई। मैं बढ़ते हुए इज़्तिराब के साथ इनकी तरफ से अगली कार्रवाई का मुंतजिर था। वो लोग ज्यादा देर वहां खड़े नहीं रह सकते थे। फिर मैंने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलते देखा। उसने पजीरो का बोनट खोला और इंजन से छेड़छाड़ करने लगा। इसके दोनों साथी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। इनकी नजरें यकीनन शरफू के घर के दरवाजे पर जमी हुई होंगी। इंतजार के लम्हात इनके आसाब पर सख्त करा गुजर रहे होंगे। आसाब तो खैर मेरे भी कशीदा हो रहे थे, लेकिन मेरी हर कार्रवाई इनकी आइंदा कार्रवाई पर मुनहसर थी। निस्फ घंटे के लगभग सूरत हाल चूंकि तू रही। फिर पजीरों में बैठे हुए दोनों अफराद भी गाड़ी से उतर आए और ड्राइवर के पास जा खड़े हुए। वो तीनों आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। फिर वो किसी फैसले पर मुत्तफिक हो गए। ड्राइवर ने बोनट बंद किया और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा, जबकि उसके दोनों साथी आसपास के माहौल पर नजरें डालते शरफू के घर की तरफ बढ़ने लगे। इसके साथ ही मैं अपना पिस्तौल काक करके इनके अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए तैयार हो चुका था। खुरदरे चेहरों वाले दोनों अफराद शरफू के घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। इनके हाथ इनकी जेबों में पोशीदा हथियारों पर जमे हुए थे। इनमें निस्बतन पस्ता कद वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी। शायद इसके आसाब भी खासे कशीदा थे, क्योंकि दरवाजे पर पड़ने वाली इसकी अंगूठी की ज़रब कुछ ज्यादा ही जोरदार थी, जिसका उसे फौरन ही एहसास भी हो गया था। चुनाचे कदरे तवक्कुफ के बाद दोबारा कदरे ढीले हाथ से उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैंने शरफू की आवाज सुनी। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक इस बेहंगम दस्तक ने उसे मोहतात कर दिया था। हो सकता है उसे खतरे का एहसास भी हो गया हो। दस्तक देने वाले की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इन्हें तवक्का रही होगी कि दस्तक के जवाब में फौरन दरवाजा खुल जाएगा। जवाब न मिलने पर शरफू का शक यकीन में तब्दील हो गया। जवाब क्यों नहीं देते? कौन हो और क्या चाहते हो? शरफू के लहजे में फौलाद किसी सख्ती थी। दस्तक देने वालों ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अचानक गोली चलने के धमाके ने सन्नाटे की चादर को तार तार कर दिया। इसके साथ ही दरवाजे पर दस्तक देने वाले के हल्क से कर्बनाक चीख बरामद हुई। वो अपना बायां शाना दबाकर बुरी तरह उछल रहा था। गोली घर के अंदर से चलाई गई थी। शरफू ने दरवाजे की दर्ज के ऐन सामने मौजूद दस्तक देने वाले का शाना छेद डाला था। शरफू की जारहाना कार्रवाई ने बिन बुलाए मेहमानों को बुरी तरह बदहवास कर डाला था। इस वक्त वो इनके रहे सहे हवास पे जवाब दे गए, जब मैंने अपने पिस्तौल के नाल एक तर्ज में लगाकर लगातार 4-5 गोलियां इन पर बरसा दी। इनमें से कोई भी इनके जिस्मों में पवस्त नहीं हुई थी, लेकिन इस नागहानी ने इनके पांव उखाड़ डाले और वो बेतहाशा पजीरों की तरफ दौड़ पड़े। इनके हाथों में पिस्तौल लहरा रहे थे, लेकिन इन पर गोलियां बरसाने वाले इनकी नजरों से ओझल थे। शरफू शायद दरवाजों की दर्ज से इनकी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने भी मजीद 5-6 गोलियां इनकी तरफ रवाना कर दी, जिनमें से कोई भी कारगर नहीं हो सकी। अलबत्ता इन दोनों की रफ्तार मजीद बढ़ गई थी। पजीरों का ड्राइवर ये सूरत हाल देखकर पहले ही गाड़ी के दरवाजे खुल चुका था। जख्मी और उसका साथी दीवानावार गाड़ी में घुसते चले गए। इसके साथ ही पजीरो एक झटके से आगे बढ़ गई। मैंने उसे तकरीबन 50 गज आगे जाने दिया, फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने पिस्तौल का पूरा मैगजीन पजीरो के अकबी हिस्से पर खाली कर दिया। पजीरो के पिछले दरवाजे के शीशे चिकनाचूर हो गए और
और एक दो गोलियों ने अकबी हिस्से में नस्ब डीजल से लबरेज भरी टंकी को भी छेद दिया था। पजीरो की रफ्तार बहुत तेज थी। यकायक वो बुरी तरह से लहराई और एक जोरदार धमाके के साथ एक इलेक्ट्रिक पोल से जा टकराई। तसादुम इतना शदीद था कि पोल टूट कर करीबी इमारत की दीवार से टकराया। फिजा में जबरदस्त चिंगारियां उड़ी। अगले लम्हे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। फिर मैंने पजीरो को शोलों में गिरते देखा। टंकी से बहने वाले डीजल ने आग पकड़ ली थी और चंद ही लम्हों में पजीरो पूरी तरह आग का अलाव बन चुकी थी। पजीरो में सवार अफराद शायद तसादुम की शिद्दत से होश व हवास खो चुके थे, क्योंकि आग की लपेट में आने के बावजूद वो चीखो पुकार नहीं कर रहे थे। मेरी नजरें मुसलसल धड़ाधड़ जलती पजीरो पर जमी हुई थी। इन तीनों बदबख्तों का यह हशर देखकर मुझे जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। ये महज हुक्म के गुलाम थे जो मामूली माली मफाद के लिए अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह करने पर आमादा हो गए थे। मैंने सिर्फ खौफजदा करना चाहता था। मुझे क्या पता था कि इनकी मौत इन्हें घेर कर आज रात यहाँ ले आई है। मैं देख रहा था कि आग अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। ये पजीरो के पीछे वाला जेरी कैन था जो फटने की वजह से आग लगी थी, लेकिन अभी टैंकी बाकी थी। अगर आग टैंकी तक पहुंच जाती तो इसके साथ ही गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते और इन तीनों बदनसीबों की लाशें इस काबिल भी न रह जाती कि इन्हें यक जा करके सपुर्दे खाक किया जा सकता। मैं मजीद यह इबरतनाक नज़ारा नहीं देख सकता था। अपने पिस्तौल में नया मैगजीन चढ़ाकर मैं तेज रफ्तारी से ट्रक पर से उतर आया। मैंने शरफू के घर के दरवाजे पर दस्तक के लिए हाथ उठाया ही था कि फिजा एक जबरदस्त धमाके से लर्ज उठी। पजीरो का फ्यूल टैंक फट चुका था। धमाके की आवाज़ आधे शहर को जगाने के लिए काफ़ी थी। इस इलाके के लोगों की नींद तो बेतहाशा फायरिंग से पहले ही उड़ चुकी थी। ऐसे में मेरा सड़क पर नजर आना मुझे मुश्किलात में फंसा सकता था। मैंने जल्दी से शरफू का दरवाज़ा खटखटा दिया। शरफू, दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। मेरी नज़रें तेज़ी से आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी।